महाराष्ट्र मामले पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको सुना। Home Minister, same day, that is former CP version. Another issue which I just think this is not anybody raised is that March 3rd week or 2nd week, he mentioned in his letter he has briefed CM, Deputy CM and me. And I said it is correct that he met me. I don't know about CM and Deputy CM. I asked them, they said yes, but he met me, that is more important. So this was in 2nd week of March. See, suppose in mid-February, CP got this type of information. So while he was getting up to 2nd week of March for whole month, this is an important issue. It was his duty, at least he should say something in writing. At least it was his duty to register such and such things to certain record. But that is not done. He has disclosed all these things when he was about to transfer or he transfers. But all these things, I am not going in detail, it's not my job. Ultimately, whoever will inquire, they will go in detail. Yesterday I also suggested, for sake of inquiry, somebody should be senior most officer and whose reputation is above all should take this responsibility. And I suggested, this is suggestion. Not, I have not discussed, I also said I have not talked. Name of Sri Rivero, but Rivero has taken public stand. He is not going to take any responsibility so that it is not there. Now for me, important issue is whatever this conversation, allegation, everything, that Hussein will invest, that will come what is the truth. But from my side, what I understood is, important issue is what was the main case. Main case was certain items were kept in particular vehicle, somewhat near to house of Sri Ambani. Then, of course, police must have started investigating who has kept this vehicle, who owns this vehicle, and it looks like that they come to conclusion, or at least they got the information, may not be conclusion, but information, this particular jeep was in the custody of one deceased Hiren. And one fine morning we read that Hiren was assassinated. Now the investigation might have started. What is the role of Hiren in this jeep? Is it correct that jeep was with him for many months? Is it correct that his jeep was taken from him by some police officer? And one fine morning we read, Hiren is no more. Now, ATS Bombay has yesterday or today announced they have arrested 2 persons.
in connection with assassination of Hiren. So I think तो बात साफ हो गई है कि हिरेन की हत्या किसने की। हिरेन की हत्या करने वाले पुलिस को एटीएस को जो लगते हैं ऐसे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। अभी बात आएगी आगे इन्वेस्टिगेशन में कि why he has done this, these two gentlemen have done this, whether somebody has told him. That is in investigation process. Facts will come today, tomorrow, day after tomorrow, can't say, but something will happen. But I am happy about one thing. The main case was not the allegation or anything from CP. Main case was certain material near Mr. Ambani's house that was kept in jeep. Then the jeep for the custody of so and so, see, and ultimately the jeep who was claiming he was the owner of on his possession, he was assassinated, and ATS Bombay had reached and arrested those who were involved in assassination. So, real case was that, and I think Bombay ATS is going on correct direction. So just to divert this entire investigation, why will some people might be saying about something happened between him and Home Minister was asking such and such thing. Achha, when they made a statement, the Home Minister was asking, is there any reason, is there any actually cash transaction was given, any allegation? Just vague allegation has been made, and I honestly feel the investigation which is reaching at pinpoint, there was effort to divert that investigation, and now the truth is coming. Now you can ask if you want it. Sir, the meeting to be held today, any decision that you will be arriving at today, since yesterday you said that today. Yeah, in fact, when we got all this information, when we got that Mr. Deshmukh was hospitalized, and that's why the allegation was made exactly in the same place. And when he was in hospital, it established there is a hospital certificate, and all government record also said that entire 3 weeks he was not in Bombay. He was in Nagpur, that is his hometown. And that's why in such situation, question doesn't arise. केंद्र सरकार कह रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर और केंद्र सरकार। सदन में हंगामा हो रहा है। क्या आप अनिल देशमुख के लिए वाउच करेंगे सर कि वो पाक साफ है और इसमें कोई सरकार का मंत्री लिप्त नहीं है? मैंने सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। ये दूसरी बात, जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, because yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur, so question doesn't arise. फडणवीस सिंग यांच्यावर दबाव टाकण्यात येत आहे का? अशा पद्धतीने पत्रलिखित करून महाराष्ट्र सरकार किंवा गृहमंत्र्यांना अडचणीत टाकणं, सरकारला अडचणीत टाकणं हे केलं जाते का राजकीय षडयंत्र वाटतं? इसी बेसिकली जो कुछ लिखा गया, जो फॉल्स एलिगेशन या क्या एलिगेशन जो किए इस बारे में, अल्टीमेटली मैंने कल कहा था कि इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो,
जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। बीजेपी ये भी कह रही है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तब तक अनिल देशमुख को स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि उनके होम मिनिस्टर रहते एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है? सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकद नहीं रही। सर, शिवसेना का कहना है की तुम्ही अर्धसत्य सांगत आहात, तुम्ही पूर्ण सत्य सांगत नाही। इतकंच नाही तर देवेंद्र फडणवीसांनी आरोप केलाय की ह्या आधी पण 2 पोलीस अधिकाऱ्यांनी रिपोर्ट दिले, ते आपण लपवतात, हे तुमच्यावरच आरोप केले। माझ्या त्याच्यात म्हणजे माझं भाग्य है कि उन्होंने मैं इसमें था ऐसे नहीं कहा। उन्होंने जो कहा ये हाफ सत्य, ये बात करेक्ट नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल थी मैंने दी, आज इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, वो भी आ गई। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें ज़्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात है। सर, शिवसेना का कहना है, सर शिवसेना का कहना है परमवीर सिंह जो हैं वो बीजेपी के आदमी हैं और उन्होंने एलिगेशन लगाया है। एनसीपी का इस पर क्या कहना है, रिएक्शन? दूसरा, आपका क्या अभी तक सीएम साहब से कोई बातचीत हुई है? सीएम साहब अभी तक क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये कुछ पार्टी में थे या कोई है या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आपका कोई रिएक्शन नहीं है? एनसीपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि परमवीर सिंह के इशू? मैंने कभी देखा ना, मैं उनको कई सालों से देखा था, इनके बारे में कुछ बातें इधर सुनने के लिए आती थी, मगर ये पॉलिटिकल पार्टी में है ऐसे मैंने कभी देखा नहीं। आपने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए और मुझे कंफर्म है कि वो नागपुर में थे। इस सारे संबंध में क्या उद्धव ठाकरे साहब से आपकी बातचीत हो रही है? खुद मुख्यमंत्री है, एलिगेशन उन्हीं पे लग रहा है, महाराष्ट्र की सरकार चल रही, क्या उनसे कोई बातचीत हुई? मैंने कल ही उनसे बात की थी, मैंने आपको कहा था कि तो सर अभी तक मैंने उनसे बात की थी और उनको अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी उनके पास हम भेजेंगे और उनके सामने सच्चाई आई भी हो सकती है, इससे पहले वो मुझे मालूम है। पवार सर को इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है? नहीं, सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसका और कोई मतलब आपको लगता है कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है? सर कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख साहब हॉस्पिटल में थे, कोविड हुआ था उन्हें, तो क्या एनसीपी अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे रही है? दूसरा सवाल ये कि अगर जांच चल रही है और गृह मंत्री वो बने रहेंगे तो जांच भी तो प्रभावित हो सकती है सर। नहीं, बात जांच है, अभी जांच की बात इस बारे में तय करना है सीएम साहब को। मैंने कल भी कहा था, अभी जांच एक्चुअली शुरू नहीं। कल जो आपने कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था वैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी डिमांड नहीं है, मगर डिमांड वो सीएम साहब को हो सकती है, तो उनका अधिकार है। गृहमंत्री पदावरती असताना अनिल देशमुख यांची चौकशी कशी करतायत? अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यायला हवा। नाही, पॉईंट आता चौकशीचा इश्यू कुठं आला की जे एलिगेशन होतं तेच खरं नाही हे सिद्ध दिसतंय आता। आपने लगाया है कि एटीएस की प्रोब राइट डायरेक्शन में जा रही थी और शायद का कहीं और नाम सामने आते, इसीलिए जो है डाइवर्ट किया गया। अभी अगर उसमें पहला केस देखा जाए, जब एक्सप्लोजिव मिले थे, उस केस में भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो सर क्या आपको लगता है कि जस्ट टू डाइवर्ट दी अटेंशन ये किया गया है, चाहे जेलेटिन स्टिक्स वाला हो अंबानी के घर के पास और चाहे मनसुख हिरेन की मौत का मामला हो? सर मालूम नहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में मेरा एटीएस पर भरोसा है। एटीएस जो कोई सच्चाई है वो सामने निकलेगी। ऐसे समय मेरे जैसे लोगों ने कुछ कमेंट करना ये ठीक नहीं कि जिसका गलत असर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर होगा, और इसलिए इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता।
Good evening and welcome to Z News Bulletin.